HOD એનેસ્થેટિસ. હવે આજે જે આ વર્કશોપને ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે એ કેવી રીતે નાના કાપાથી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવડાવી દઉં, જે અત્યારે આપણે ડાયસ પર જે હું જો કદાચ ભૂલતો ન હોય તો લગભગ 10 થી 12,000 લગભગ 10,000 એન્જિયોપ્લાસ્ટી પણ કરેલી છે. અને જુદી જુદી ભારતના જુદા જુદા ખૂણેથી અમુક સર્જનોને સારી નસ હોય ને જે ધમની અને શિરા જે બે વસ્તુ હોય છે એમાંથી ધમનીથી ખાલી આપણે બાયપાસ કરતા જે આયોજન કર્યું છે એનાથી દર્દીઓને પણ ઘણો ફાયદો થવાનો છે. આપણે આજે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને વર્કશોપનો એક આયોજન સલાહ આપી છે. મોરિંગ લાઈફ સાયન્સ કરીને જે કંપની છે, જે કઈ સર્જરીઓ અહીંયા થઈ છે એ લગભગ આંકડો આપણો 5,000 ને ક્રોસ કરી દીધેલો છે. કે જે ભાવનગરમાં બાયપાસ સર્જરી 5,000 નો આંકડો કદાચ આજથી 10 વર્ષ પહેલા કોઈ વિચાર્યું. एंजियोप्लास्टी भावनगर में वाला साहब से कराएंगे, वहाँ पे बाईपास एडवाइस होगा अहमदाबाद में, और उसके लिए हमारे पास इन्वाइट करने का यही पर्पज़ था हमारा. मैं हम ये बताना चाहते हैं भावनगर अभी ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज है कार्डियक सर्जरी के लिए, कार्डियक साइंसेज के लिए. जो सर्जरी जो प्रोसीजर अभी भी अहमदाबाद में बहुत कम जगह होगा या फिर बॉम्बे में बहुत कम जगह होता है, वो हम यहाँ पे मैक्सिमम काम करते हैं ना. ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हमारे पास सीखने के लिए ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स एस्टेब्लिश्ड कार्डियक सर्जन आते हैं. अभी भी जो हमारे पास 10 सर्जन आए हुए हैं, कोई भुवनेश्वर से है, कोई कलकत्ता से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुड़गांव से है, कोई देहरादून से, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से आते हैं हमारे पास, है ना. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भावनगर अभी इंडिया के नक्शे पे कार्डियक साइंसेज के मामले में काफ़ी ऊपर चला गया है ना. ये चीज़ हमें प्रोजेक्ट करनी कि हमारा भावनगर काफ़ी आगे है. हम यहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव वाल्व रिप्लेस करते हैं, मिनिमल इन्वेजिव बाईपास जो सामने से पूरा सर्जरी करते हैं वही सर्जरी हम लगभग 2 इंच के इंसिजन से पूरा कर देते हैं. इसका एडवांटेज ये रहता है कि ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन कम होता है, पेशेंट का मोबिलिटी, मतलब अगर अपन ओपन सर्जरी करते हैं तो पेशेंट का रिकवरी टाइम लगभग 8 to 10 वीक होता है. मिनिमल इन्वेजिव में रिकवरी टाइम 3 to 4 वीक होता है. पेशेंट डे 4 पे ही मोबिलाइज होकर और डे 4थे दिन घर जा सकता है और विदिन 2 वीक वो अपना रूटीन एक्टिविटी चालू कर पाता है. तो ये इस तरीके से हमने एज ए टीम, मैं डॉक्टर वसी, डॉक्टर अभिषेक परमार, ने ऐसा डिपार्टमेंट डेवलप किया है कार्डियक साइंसेज के मामले में कि किसी से मैच नहीं करता है. आइडिया यही है कि भावनगर कार्डियक साइंसेज और कार्डियक स्पेशलिटी और हेल्थ केयर के को लेकर पीछे ना रहे. शहर शायद थोड़ा सा छोटा हो, बड़े मेट्रोस की तरह नहीं, लेकिन काम हमारा वाला साहब बैठे हैं और ये पूरी टीम जो बैठी है ये हम बताना चाहते हैं कि अगर कार्डियक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. द ग्रेस ऑफ गॉड अपना एफर्ट ऐसा रहा है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट को यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं. थैंक यू. અમદાવાદ, રાજકોટ, બરોડા કે બીજા મોટા સિટીમાં જે જવાની જરૂર હતી એ લગભગ અમે એવા કેસીસ કરીએ છીએ કે જેથી એટલી બધી હવે જરૂર ન પડે. અને આની માટે ખાસ જે સમયની સાથે જે નવી નવી પદ્ધતિ, નવી નવી વસ્તુઓ જે કરવી જોઈએ આ બધા કરવાથી કોમ્પ્લેક્સ એન્જિયોપ્લાસ્ટી, મિનિમલ ઇન્વેઝિવ સર્જરી આના હિસાબે છેલ્લા 8 થી 10 વર્ષની અંદર જેમ સાહેબે કીધું એમાં અમે 20 થી 25,000થી વધારે એન્જિયોગ્રાફી કરી છે, 8 થી 10,000થી વધારે કોમ્પ્લેક્સ એન્જિયોપ્લાસ્ટી ને એવા બધા કેસીસ કર્યા છે અને 5-7 હજારથી વધારે બાયપાસ સર્જરીને આવું બધું અમે કર્યું છે. ખાસ જેની માટે આપણે આજે જે વર્કશોપ ને એ બધું કરીએ છીએ કે હવે ભાવનગરની અંદર ઘણા બધા લોકો, ઘણા બધા જણા ભાવનગરમાં સર્જરી જોવા માટે, શીખવા માટે, સમજવા માટે પણ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાંથી આવતા હોય છે. આની વિશે વધારે માહિતી આપણે ડૉક્ટર બિજમોહન પ્રેક્ટિસ કરું છું અમદાવાદમાં ને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે 10 વર્ષ પહેલા ભાવનગરની બધી પબ્લિક અમદાવાદ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય હાર્ટની તો અમદાવાદ શિફ્ટ કરવું પડતું હતું. પણ લાસ્ટ 5 વર્ષમાં હવે એવું થઈ ગયું છે કે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનું બધું ભાવનગરમાં એટલું સરસ ડેવલપ થઈ ગયું છે અને બધી જ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે, ખાસ કર આ સેન્ટરમાં, એસસીજી સેન્ટરમાં. એટલે હવે પેશન્ટને ત્યાં જવાની જરૂર નથી હોતી ને બહુ સારા રિઝલ્ટ સાથે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીવાળી જે સર્જરીઝ છે ને એન્જિયોપ્લાસ્ટીસ છે, કોમ્પ્લેક્સ એન્જિયોપ્લાસ્ટી છે, બધું ભાવનગરમાં આ સેન્ટરમાં અવેલેબલ છે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સનો કે લોકોને ખબર પડે કે મોટા શહેરમાં જ સારી વસ્તુ નથી થતી ને એક નાના શહેરમાં
ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેન્ડર્ડ ને ઇન્ટરનેશનલ રિઝલ્ટ્સ વાળા આપણે સેન્ટર છે જ્યાં એટલા સરસ રિઝલ્ટ્સ આપણે આપી શકીએ છીએ એટલે આ ખાસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ રીઝન એ છે કરીને आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा ये था कि आज हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 10 सर्जन हमसे काम सीखने या काम देखने आए हैं। उसमें हमने टोटल 2 दिन में 5 मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी प्लान किए, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी मतलब नाना कापा से सर्जरी। तो जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है जिसमें ब्रेस्ट बोन कट करके सर्जरी करते हैं, उसकी बजाय हम इसमें चेस्ट की साइड से लगभग 2.5 इंच के इंसिजन से सर्जरी करते हैं विद स्पेसिफिक इक्विपमेंट। इसका बेनिफिट ये रहता है कि पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, लगभग 2 वीक। पेशेंट अपना विदिन 2 वीक 2 हफ्ते के अंदर अपना रूटीन एक्टिविटी चालू कर सकता है। पेशेंट का आईसीयू स्टे कम रहता है, पेशेंट को ब्लीडिंग कम होता है, पेशेंट को पेन कम रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। और खास बात यह है कि हम भावनगर में रह के हम ऑल ओवर इंडिया से सर्जन बुलाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से सर्जन हमारे पास आते हैं काम देखने के लिए। जो सर्जरी बड़ी बड़ी सिटी में प्रॉपर नहीं हो पा रही है उसको हम यहाँ परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। सर, आपके हिसाब से भावनगर के अलावा आसपास के कोई कितने इलाके ऐसे होंगे जिसको ये फायदा मिलेगा सीधा इससे? लगभग ये महुआ, बोटाद, अमरेली, ये अंदर राजौला, सभी इंटीरियर 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, उनको सबको बेनिफिट मिलेगा। और ये काम हम लगभग 3 साल से कर ही रहे हैं। अभी हम इसको एडवांस लेवल पे लेके गए हैं। जो आपका जो वर्कशॉप है वो आगे कितना चलेगा और आपकी टीम में कौन कौन है सर? मेरी टीम में मैं हूँ डॉक्टर ब्रजमोहन, डॉक्टर राजीव वशिष्ठ, डॉक्टर अभिषेक परमार, सिद्धराज बाला साहब एज ए कार्डियोलॉजी के एचओडी, और डॉक्टर हार्दिक खत्री और डॉक्टर अजय, ये हमारे ये एनेस्थेटिस्ट हैं। और उसके अलावा भी हमारे नर्सिंग स्टाफ जो टेक्निकल टीम होती है लगभग 10 लोगों की और टीम होती है, लगभग 13-14 लोगों की टीम है हमारे पास।